Hey guys, this is Astha And this is Dr. Nikita and this is Rawcast. by TEDx Vips. Talking about our guest today, she teaches English like a storyteller. She speaks like a broadcaster and walks the lanes of classroom and content creation with grace. From Ramjas College to various NCRT's digital platforms, she is as graceful in poetry as she is in pedagogy. Please welcome the vibrant and amazing Miss Neha Beniwal. Thank you so much. Thank you so much for having me here. It's such a pleasure to be at Vips Rawcast, and I'm super excited to be a part of this. Hi ma'am. Hello. How are you today? I'm doing very well, Astha, and as I said, I'm super excited to talk about my life and the experiences of my life that I've gained as a media person, as a teacher, and as a human being for all. So ma'am, let's start with please give a brief introduction about yourself. How are you? What do you like? All things included. There is so much to talk about. First of all, I am a teacher with the government of Delhi presently, and before that I have had experiences of working as a radio person, as a radio presenter, a voiceover artist, an anchor, and an actor as well. Ma'am, that is so amazing. So you just mentioned that you are into teaching. So I want to ask you that what pulled you into teaching? Astha, I feel that I did not choose the profession teaching. This profession chose me. I never wanted to be a teacher in the first place. But you know, my father is already there in a government job. He's not a teacher, but he's into schools and all. So following his footsteps, I thought that teaching would be a better option. I did my graduation, then I pursued my masters from Delhi University, and then I did my B.Ed from Central Institute of Education, Delhi. And after that, I had the opportunity of working with some lovely fundamental schools of Delhi, and that's the story of my life so far. That's very nice. So, like you have worked with some of the top schools of Delhi, Yes. right? And currently you're working with the Directorate of Education Yes. Delhi as well. Yes. So, how has been your experience till date? The experience has been amazing because before joining the Delhi government, I was working with some private schools of Delhi. Like the previous school I was working with was Ramjas School, Pusa Road. I was a PGT English over there. The experiences were amazing before that as well, because now the transition that I have faced, I've seen is that in private schools we get children from some middle class families, some rich families. But when we come to a government school, we have children from all humble backgrounds. So there is a difference in the kind of children that we teach. बट इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है कि बच्चे सब पढ़ने वाले हैं. बच्चों को पढ़ने की ललक किसी भी लेवल पर बहुत ज़्यादा होती है, एंड एज टीचर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, उनके अंदर जो झिझक है, उसको हटाएं और टैलेंट को बाहर निकालें. एंड एज अ टीचर आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट. Right. So, with changes happening, with these national education policies coming over, what do you feel कि education system में क्या changes हो रहे हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम अब बहुत ही ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है. हम एनईपी के बहुत सारे पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं. वी हैव डिस्कशंस, वी हैव पॉलिसीज़ इन प्लेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हर बच्चे की नीड को एड्रेस किया जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड्स, लैंग्वेज बैरियर्स. बच्चे का रीजनल अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार करके हम हर बच्चे की नीड के हिसाब से बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए पेडागॉजी है, टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं. सो ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस है टीचिंग लर्निंग का वो बहुत अमेजिंग है. और किसी भी टीचर को या किसी भी बच्चे को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो ये नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते, बिकॉज एज अ टीचर आई ऑलवेज बिलीव हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चा बहुत ही मार्वलस है. बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो मार्वलस बच्चे में छुपा है वो हम मेहनत करके और थोड़ा सा बच्चे को समझ के बाहर निकालें. So, as a teacher, आपको क्या लगता है कि आप क्या changes अपने education इम्पार्ट करने के प्रोसीजर में लेकर आ रहे हैं, जिससे आप उनका बेस्ट लेकर आ बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं इसको ऐसे एड्रेस करना चाहूँगी कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फिनिशिंग अ सिलेबस, कंप्लीटिंग द कोर्स एंड गेटिंग द चाइल्ड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. टीचिंग ये तो बेसिक चीज़ है जो हम करते हैं, वी गेट पेड फॉर इट, लेकिन इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है. आई ट्राई कि बच्चे के अंदर
कॉन्फिडेंस आए उन चीज़ों को समझने का जो उसको रियल लाइफ में काम आएंगी. नाउ सिंस आई एम अ लैंग्वेज टीचर, आई केटर टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऐसे में बच्चों में देखा जाता है कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंस कई बार होता है. उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं होता, वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो प्रिविलेजेस नहीं होती जो शायद मेरे पास थी या बहुत से लोगों के पास होती हैं. तो ऐसे में बच्चे को हम कैसे बताएं कि आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें और एक एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल जोन जहां बच्चा फ्रीली अगर मिस्टेक भी कर रहा है तो उसको कोई जज नहीं कर रहा है. रादर वी आर देयर टू गाइड एंड होल्ड दी हैंड्स ऑफ द चाइल्ड. तो आई हैव ट्राइड दैट इन माई क्लासेस, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेटअप, क्योंकि वहाँ बच्चों को मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है हैंड होल्डिंग की, प्यार की. तो दैट आई हैव ट्राइड, और मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे देख रहे होंगे तो वो इस बात को ज़रूर उसके साथ सहमत हो जाएंगे. Ma'am, do you also feel कि as compared to the older times, like I'm talking about मेरे parents जो पढ़ाई करते थे, now the government and teachers have been really soft on students, because पहले जो course होता था that was really extremely hard. The courses that my parents studied in 10th, वो अब मैं शायद college के 3rd year में पढ़ रही होती हूँ. तो do you feel that impact is going soft on students? आस्था, मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम पिछले 50 साल पहले करते थे वही आज करेंगे. सो एज द टाइम्स कीप चेंजिंग एंड द चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, वी नो दैट. तो उसके साथ हमें जो भी आज के बच्चे की नीड है, 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन को देख रहे हैं, तो जब चीज़ें इतना एक्सपोजर बच्चों के पास है, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से हमें भी अपनी पैडागोजीज़ को मॉडिफाई करना है, अपनी स्ट्रैटेजी, और सबसे बड़ी बात होती है अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करने की मुझे लगता है नीड होती है. तो अगर ज़रूरत इस बात की है कि वी नीड टू बी अ लिटिल सॉफ्टर ऑन द चाइल्ड, व्हाई नॉट. और बच्चा तो कोई ऐसा पत्थर तो है नहीं जिसके लिए हमें हार्ड होने की ज़रूरत है. बच्चा इज़ द मोस्ट सॉफ्ट थिंग यू कैन एवर कम अक्रॉस. इट्स लाइक अ फ्लावर. उसे ब्लूम करने के लिए बस हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है. Right. So on the note of that previous question, I also personally feel कि हम लोगों के साथ में हमारे पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. बिल्कुल. राइट. एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है. एंड आई स्ट्रांगली फील, इट्स माई ओपिनियन, कि आज की जनरेशन उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डिप्रेशन केसेस वी आर लुकिंग एट, सुसाइडल केसेस वी आर लुकिंग एट. सो डू यू फील कि समवेयर इन आवर एजुकेशन सिस्टम वी नीड टू इनकलकेट दैट एस्पेक्ट एज वेल? आई थिंक एजुकेशन सिस्टम अपने आप में ऑलरेडी बहुत समृद्ध है. तो एजुकेशन सिस्टम को हम अगर कहीं भी थोड़ा नेगेटिवली देख रहे हैं तो वो गलत है मेरे हिसाब से. ज़रूरत इस बात की है कि जो शायद एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है एज अ सोसाइटी, हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शायद जो मॉरल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं डिक्लाइन अगर हो रही हैं, तो उनको होल्ड करने की ज़रूरत है. और साथ में बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं आगे, पेरेंट्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है पीछे रह गए हैं. तो मेरे हिसाब से दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि पेरेंट्स को भी थोड़ा समय के साथ अपनी अप्रोच बच्चों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी ताल कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा. पहले क्या होता था कि सभी को पता था या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा. वी हैव मूवीज ऑन सच कॉन्सेप्ट्स एज वेल, 3 इडियट्स हम सभी ने देखी है. लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बच्चे बनना चाहते हैं. दे वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर्स, दे वांट टू बी जर्नलिस्ट लाइक आस्था. सो आई मीन इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्यों आज के पेरेंट्स को ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है या थोड़ा समय लगेगा समझने में. सो द चाइल्ड शुड बी लेफ्ट फ्री टू डिस्कवर व्हाट ही और शी वांट्स. कई बार करने के बाद ही पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे अंदर क्या टैलेंट है. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था मैं कभी टीचर बन सकती हूँ, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, it is my students who actually made me the teacher. Seriously, I'm telling you, this is a real personal experience. उससे पहले I would have never thought कि मैं teaching कभी कर पाऊंगी. And teaching, as I said, is not only about finishing a course and delivering a lecture. It is a very holistic thing that I feel about. Right. Okay. So talking about your experience as RJ also. So आप करते थे. Yes. What was your typical day all about? So if I talk about my experience as a radio presenter, radio person, anchor, it all started when I was in school. Not exactly as a radio person, but एक होता है ना आवाज़ के साथ आपका जो एक रिश्ता होता है, एक अटैचमेंट होती है. यू रिकॉग्नाइज के हाँ कुछ तो है, शायद मुझे नर्चर करने की ज़रूरत है. सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माई लवली टीचर्स. मैं अपनी हिंदी टीचर का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी, मिसेस रमा बयाला. और वो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट हिंदी की टीचर होती थी, बट शी वॉज सच एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग टीचर. इतने प्यार से वो हमें 9 to 12 उन्होंने हिंदी पढ़ाया.
मुझे लगता है कि उनका बहुत हैंड होल्डिंग रहा, कि उनका वो स्ट्रिक्टनेस का हो या जो पढ़ाने का एक तरीका होता है, वहाँ से मुझे लगा कि मैं हिंदी पढ़ने में एंजॉय कर रही हूँ। तो जब मीडिया में, क्योंकि मैं एज अ हिंदी प्रेजेंटर रही हूँ मीडिया फील्ड में, तो वो चीज़ वहाँ से आई। तो आई यूज़ टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ कि मैंने कभी पोएट्री रेसिटेशन कर दिया, या कभी मैंने कोई न्यूज़ रीडिंग कर दी, असेंबली होती थी हमारे स्कूल में, तो वो हम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है नुपुर तनेजा, डॉक्टर नुपुर तनेजा, शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर हियर, और तो वो रेडियो के साथ अटैच थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये कर रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी करना है। सो शायद उनका बाद में वो अटैचमेंट कम हो गया, या शायद और डायरेक्शन उनकी आगे की पढ़ाई में चलेगी, बट मेरा अटैचमेंट वहाँ से शुरू हो गया टुवर्ड्स वॉइस एंड टुवर्ड्स रेडियो एंड टुवर्ड्स मीडिया। तो धीरे धीरे, अच्छा घर में क्या होता था, माई फादर यूज टू लिसन टू रेडियो। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मेरे पापा के पास एक रेडियो सेट होता था, तो कोई भी काम करें तो घर में ऑल इंडिया रेडियो के गाने बज रहे होते थे। एफएम गोल्ड चैनल को मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगी, पुराने गाने पसंद थे, तो कानों में मेरे भी पड़ते थे। अच्छा, उस समय में हम इतने मैच्योर नहीं होते कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमें गाने पसंद आ रहे हैं, बट वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता रहता था, कभी किशोर जी के गाने चल रहे, कभी रफ़ी साहब के गाने चल रहे हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे काइंड ऑफ इट बिल्ट अप, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे ये पसंद है। और जैसे ये बोल रही हैं कि अब आप सुन रहे हैं विविध भारती का दिल्ली केंद्र, और इस तरीके से मैंने कहा ऐसा तो मैं भी बोल सकती हूँ, एंड आई स्टार्टेड काइंड ऑफ कॉपीइंग इट, एंड देन आई क्रिएटेड माई ओन स्टाइल। एंड देन वहाँ से फिर ग्रेजुएशन जब करने लगे, तो ग्रेजुएशन में कुछ प्राइवेट रेडियो स्टेशंस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई वॉज अ कैंपस जॉक फॉर बिग एफएम व्हेन आई वाज इन माई सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरा थर्ड ईयर का फेयरवेल था। आई डिड माई ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम रामजस कॉलेज। सो किसी भी स्टूडेंट के लिए जब कॉलेज फिनिश हो रहा होता है, सो फेयरवेल इज़ अ बिग डे. This is the last time you'll be meeting all your classmates, your batchmates, your teachers, all those 3 years that you've spent beautifully in that campus. वो ख़त्म होने वाला है. But destiny कहाँ लेकर आई? I had this opportunity to host a 3-hour long show on Big FM Delhi, 92.7 Big FM. अब मैं क्या करूँ? तो फैसला करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने रेडियो को चुना. I went ahead with the show. जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, आरजी जिया हुआ करती थी बिग एफएम पर, तो उनके साथ एक को होस्ट किया था मैंने प्रोग्राम, एंड दैट वाज सच अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस कि आप किसी प्राइवेट, और मैंने ऑडिशन भी किया था, ऑल्दो आई फेल्ड इन दी ऑडिशन बिकॉज उस समय इतनी पता नहीं था कि क्या करना होता है एज अ पर्सन हु इज गेटिंग ऑडिशनड. तो कोई बात नहीं, वो तो मैं फेल हो गई, बट इट्स ओके टू फेल इन लाइफ बिकॉज दैट्स हाउ यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो वो किया. उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई, फिर और अपॉर्चुनिटीज़ मिली. प्राइवेट रेडियो स्टेशंस कैंपस में आते रहते थे, कभी रेडियो सिटी वाले आ रहे हैं, कभी 94.3 रेडियो 1 वाले आ रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते थे, मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी. सो ये काफ़ी समय तक चलता रहा. देन एक प्रॉपर प्रोफेशनल जो शुरू होता है, दैट हैपेंड विद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उनका रेडियो स्टेशन है कॉल्ड ज्ञान वाणी. They have an electronic media production center, they have a TV channel ज्ञान दर्शन, and they have a radio station ज्ञान वाणी. तो वहाँ का पता चला मुझे कि भाई यहाँ पर इस तरीके से people are there who are involved in RJing and anchoring and things like that, announcers होते हैं. तो वहाँ मैंने जाके ऑडिशन दिया. I got through the audition and that was the first time I was there on the mic, I mean behind the mic. तो वो फर्स्ट स्टेप था. Very nice, ma'am. One thing which I would want our viewers to take a very important note of is how humbly and confidently उन्होंने share किया about the failure, that she was rejected. So we need to understand in our lives that failure is a part of success. It's not the opposite of success, right? So on that note, ma'am, I would also want to know कि जब आप करते थे तो what was the procedure? आप कैसे डिसाइड करते थे आपके शो के थीम्स क्या होंगे? अच्छा, ये थीम वाला जो प्रोग्राम होता है वो ऑल इंडिया रेडियो के एफएम रेनबो चैनल पर होता है. और उससे पहले जब आप रेनबो के ऑडिशंस वगैरह क्रैक करते हो, उससे पहले आई वाज वर्किंग एक अपॉर्चुनिटी होती है युववाणी चैनल पर. तो वहाँ पर मन भावन और महफिल, ये 2 तरह के कार्यक्रम होते थे जो यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए होते थे. वहाँ पर आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी. थीम मिली वहाँ पे कि आपको इन जनरल म्यूज़िक से रिलेटेड, गानों से रिलेटेड एक शो तैयार करना है लगभग आधे घंटे का. तो पहले मैंने सुना कि लोग कैसे करते हैं, हाउ दे डू इट,
एंड देन ऑन द सेम लाइन्स इन माई ओन स्टाइल मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, कहीं ना कहीं वो आज भी स्क्रिप्ट मेरे किसी फ़ोन में पड़ी होगी. तो व्हेन आई रीड दैट आई वाज लाइक ओ माय गॉड, और अच्छा लगता है खुद का काम देख करके. तो वो किया, कॉन्फिडेंस आया. देन इन 2017 एट द एंड ऑफ द ईयर आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम FM रेनबो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली कि आप ऑडिशंस के लिए आइए. तो रिटन टेस्ट हुआ. देयर वाज अ 3-tier टेस्ट. पहले रिटन टेस्ट होता है where they test your general knowledge and knowledge about music, about cinema, about everything actually under the sun, because a person who's into media should know almost everything. तो वो क्लियर हुआ. रिटन क्लियर होने के बाद दे कॉल यू फॉर द वॉइस टेस्ट, वो क्लियर हो गया. देन वो क्लियर होने के बाद में यू आर इंटरव्यूड. अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू मैंशन वन मोर थिंग अबाउट फेलियर. मैंने 2 स्टेशंस के लिए टेस्ट दिया था, FM गोल्ड दिल्ली एंड FM रेनबो दिल्ली. क्योंकि मैं गोल्ड ही सुनती थी तो गोल्ड के बारे में जानकारी थी, FM रेनबो के बारे में जानकारी कम थी या नहीं थी कह सकते हैं. तो गोल्ड का जब मैं इंटरव्यू देने गई आई गॉट वेरी नर्वस बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू आई हैड फेस्ड एंड आई वाज सो नर्वस दैट व्हाटएवर क्वेश्चंस वर पुट अप टू मी आई कुडंट आंसर देम. लाइक आई वाज आस्क्ड कि आप 40s 50s की कोई सिंगर का नाम बताएं. कुछ और क्वेश्चंस भी थे, ये मुझे याद है. मैं इतनी नर्वस हो गई कि मैं भूल गई कि मैं लता मंगेशकर जी का नाम ले सकती थी या नूरजहां का नाम ले सकती थी या कोई और सिंगर जिनका मैं नाम ले सकती थी. बट इट हैपन्स एंड आई केम आउट एंड आई न्यू कि मेरा नहीं होगा और नहीं हुआ. बट आई वाज लाइक कि अपने आप को इतना मैंने काइंड ऑफ क्रिटिसाइज किया, गिल्टी फील किया कि हाउ कुड आई नॉट आंसर द क्वेश्चंस. एंड देन आई मेड अ पॉइंट कि ठीक है, रो लिया, पीट लिया, वट एवर आई हैड टू डू फॉर अ डे. एंड उसके बाद डिसाइड किया कि अब रेनबो का जब इंटरव्यू होना है, वट एवर मिस्टेक्स आई मेड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. याद करना है, पढ़ना है, वो चीज़ जानकारी मुझे होनी चाहिए. लाइक एक होता ना आत्म अवलोकन करना, सेल्फ एनालिसिस, वो बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी फेलियर. सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दिस पर्सनल फीलिंग विद ऑल द व्यूअर्स एंड ऑडियंस कि फेलियर को आप एज अ बेंचमार्क लेके चलिए कि आपको वहाँ से वो चीज़ें हटानी है जिसकी वजह से फेलियर हुआ था. And then you have to prepare yourself to excel in life. And then finally the interview happened and I came out of it with flying colors. And then the demo program happened and then the journey began. So FM Rainbow पर जो अनुभव रहा है बहुत amazing रहा है. So that's about it. मैम, आई थिंक जो आपकी जर्नी रही है FM रेनबो तक, दैट हैज़ बीन हेक्टिक. यू टोल्ड दैट यू हैड टू गो थ्रू अ 3-tier टेस्ट एंड उससे पहले भी आपको अलग अलग इंटरव्यूज़ देने पड़े थे. What made you drive to give those interviews? Like, why did you like to be a RJ? Because you were really good in your studies as well. आप उस टाइम कॉलेज कर रहे थे, तो balancing college with this is extremely tough. How did you do this? What was the drive? Astha, I feel that there should be some drive in your life that gives you the kick. So when I used to hear my voice, I was like कि कुछ तो करना है इस आवाज़ के साथ में. So maybe it was something God gifted, I guess. Maybe it was something I was destined to do. But of course, destiny बिना hard work के, बिना perseverance के नहीं काम करती है. If you think कि destiny होगी, मेरे plate में आके सब कुछ serve हो जाएगा, it's not like that, you know, things work. So if you have something in you, first of all, recognize that, identify what you have in your life, and then work in that favor. So वो जो drive थी, आज थोड़ा पहले भी जब मैं रेनबो वगैरह पे प्रोग्राम करती थी, तो उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता कि अर्ली मॉर्निंग, अब इट्स अ 24 आवर चैनल. आपको सुबह भी जाना है, आपको लेट नाइट भी करना है, आपको जब भी बुलाया जाता है यू हैव टू बी अवेलेबल. सो जब भी मैंने किया था तो इट वाज लाइक के जाना है. वो एक होता है आपके अंदर, पैशन होता है. एंड व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, आई डोंट थिंक सो एनी काइंड ऑफ अ हर्डल कैन बी बिग इनफ टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अहेड. सो आई बिलीव हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ तो खूबी होती है. खूबी क्या है, पहचानिए, नहीं तो किसी को ऐसे को पकड़िए जो आपकी खूबी पहचान कर आपको बताए और आप उसको ज़रूर परस्यू कीजिए. अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डू, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर मैं सिर्फ टीचिंग कर रही होती तो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती लाइफ में. तो ये जो एक्सपीरियंस हुए थे मीडिया के, ये बहुत अमेजिंग रहे हैं. सो सिंस आई हैड दैट एक्सपीरियंस, आई एम हियर टुडे टॉकिंग अबाउट इट एंड शेयरिंग माई experiences here with all of you. Ma'am, but don't you think because you like being RJ so much and that was your passion sort of, so why didn't you do it professionally? Why did you choose teaching also साथ में? Why not? Because somewhere I did have that inclination for teaching also. Okay. So it was like कि दोनों चीज़ें चाहिए.
Also, ma'am, I feel a lot of students from my generation, especially people like me, even we have a drive about something, we still get stuck on things. Like, if I want to pursue something, I will procrastinate about कि यार इसका कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद इसकी सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, उसके बाद we have to work for it. Did you also procrastinate? Did you also do some courses? No. If I talk about my experiences as a radio person, I do not have any professional qualification. Whatever I have done in my life so far has all been through my own experiences. It's like self-taught kind of a thing. So that's what I can say. I didn't feel the need to pursue, although I wanted to pursue mass comm and journalism from Jamia, but somewhere पापा ने अलाउ नहीं किया. But it was like it's absolutely fine. उन्होंने नहीं किया तो भी फाइन हो गया और अभी सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. So I don't have any qualms about it. Life has been really blessed and great. So obviously as they say, where there is will there is a way. Absolutely. So even though allow नहीं किया, still आपने अपना बात अपने लिए crave करी. नहीं, उस समय बहुत बुरा लगा था मुझे. Obviously. For years I used to talk, बाबा आपने अलाउ नहीं किया. But you know, लाइफ में चीज़ें they fall in place. तो उस चीज़ को अगर हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, they should keep in mind कि किसी भी तरह की हर्डल को आप दिल पे मत लीजिए. आई नो बुरा लगता है, यू हैव कंप्लेन समटाइम्स, बट चीज़ें यू नो वो आ जाती हैं लाइन पे. उस चीज़ का वेट कीजिए. लेट योर डेस्टिनी गिव यू द चांस, लेट इट गिव द टाइम. उसको टाइम दीजिए आप थोड़ा सा. So it has to be a mix of both. Your hard work and then trust in हार्ड वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट. हार्ड वर्क के बिना मुझे नहीं लगता यू कैन इवन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू हैव द डिजायर टू हैव वाटर एंड देन फिल द ग्लास एंड देन हैव इट. तो उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा. हार्ड वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट. Even whatever happens for a good reason. एब्सोल्युटली, यही अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में. Right. Do you, while you were an RJ, did you make any mistakes on air? Oh my god. And You want me to spill the beans? Yes. I want to know the story. Okay, let me address that as well. मुझे लगता है मैं इतना स्पॉन्टेनियस बोलने की कोशिश करती हूँ. आई हैव दिस प्रॉब्लम, इफ समथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ मी, आई डोंट थिंक सो मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी. आई ट्राई टू कीप इट in my mind what I have to, like if some piece of information is to be given, I keep it in my mind and then I try and do it naturally, like it should be organic. That's how it should be. तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, like fumble हो जाता है. Allowed नहीं होता, I'm telling you, it's not a good thing to fumble and make mistakes and lisp and all of that stuff, but इंसान है, you know, that's my personal opinion. इंसान है, गलती इंसानों से ही होती है. बस एक गलती को दोबारा मत कीजिए, हर बार कोई नई गलती कीजिए. Is there any specific moment that you remember जो बहुत ही embarrassing हो गया था आपके लिए? या funny नहीं, हो गया था. फनी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा है. फनी इन द सेंस कि मैं बहुत हंसती हूँ रेडियो पर. आपको पकड़ जब भी मैंने किया है तो मैं बहुत हंसी हूँ. लिसनर्स के साथ यू नो, स्टूडियो का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ स्टूडियो, आप शो कर रहे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा होता है, बट आपको हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं विद इन द सिटी, विद इन द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब. वो आपको सुन रहे होते हैं और इवन देन आप उनके साथ ऐसे बात करते हो, मतलब मैं ऐसे कोशिश मेरे को लगती है कि मैं ऐसे बात करूं कि वो वहीं बैठे हैं बिल्कुल मेरे सामने. और जब रिस्पॉन्स भी आता है बहुत से लिसनर्स का, वो रिस्पॉन्स इतना प्यारा होता है कि भाई मतलब लगता है कि हाँ, आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है. एंड दैट्स द मोटिवेशन दैट यू गेट. और लिसनर्स के साथ जो रिश्ता बनता है, दैट इज़, आई कैन डिस्क्राइब इट इन टू वर्ड्स. नो सीरियसली, इट्स सो डिफिकल्ट, बट वो एक दिल का रिश्ता होता है. और हमारे तो स्टेशन की टैगलाइन भी है, दिल से दिल का रिश्ता. इस तरह से होती थी FM रेनबो की कभी टैगलाइन. तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. लिसनर्स इतना प्यार करते हैं. पहले तो चिट्ठियों का ज़माना होता था, हालांकि उस ज़माने में मैं रेडियो पर नहीं थी, तो चिट्ठियाँ आती थी, पोस्ट कार्ड्स आया करते थे, आपको पता होगा. तो वो पोस्ट कार्ड का ज़माना, जहाँ तक मैंने सुना है अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, इट वॉज सच अ थिंग कि आप हैंड राइटिंग में लिख कर भेज रहे हो किसी को. यू आर मेकिंग एन एफर्ट कि आप बाज़ार गए, पोस्ट ऑफिस गए, आपने वहाँ से पोस्ट कार्ड ख़रीदा या इनलैंड लेटर ख़रीदा, उस पर आपने चीज़ें लिखी. बिकॉज लिखना इज़ एन एक्सपीरियंस. यू कैन नॉट बी अ लायर व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, मुझे ऐसा लगता है. तो राइटिंग इज़ दैट प्रोफाउंड फीलिंग दैट यू गेट. तो वो बहुत अच्छा होता था. उसके बाद अब डिजिटल ज़माना है, तो लोग SMS करते हैं या फिर आपको WhatsApp करते हैं, तो उसके थ्रू, एंड समटाइम्स यू गेट अ चांस टू टॉक टू योर लिसनर्स ऑन फोन. मैं तो मिली भी हूँ, बहुत से मेरे लिसनर्स हैं, मैं उनका नाम ले सकती हूँ यहाँ पर. हाँ,
प्लीज। एक हमारी बहुत सीनियर लिसनर है मिसेस धर्म भाटिया जी, रोहतक में रहती हैं। शी इज़ अबाउट 85 एंड शी इज़ अ डाई हार्ड लिसनर ऑफ आवर चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। और मेरी खुशकिस्मती रही कि उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किया और उनके पूरे परिवार से मिलकर बहुत खुशी। और एक चीज़ जो होती है ना, कितना सम्मान मिलता है जो काम आप कर रहे हैं। और हम एक दूसरे को देखे नहीं थे कभी पहले, बट जब मिले तो मुलाकात हुई और बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे एक और लिसनर हैं मिस्टर प्रेमचंद प्रेमी। ही इज़ अ वेल्डर बाय प्रोफेशन। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो बिजनौर में रहते हैं, बिजनौर उत्तर प्रदेश में, और लेकिन लिखते हैं। ही इज़ अ राइटर और ऑल इंडिया रेडियो के डाई हार्ड लिसनर हैं, फ़ैन हैं। तो ही वॉज सो काइंड टू इन्वाइट द प्रेजेंटर्स ऑफ FM रेनबो टू हिज हाउस इन बिजनौर। वहाँ उन्होंने बुलाया एंड आई हैड द प्रिविलेज टू गो टू हिज हाउस। और वो जो एक्सपीरियंस था, ओ माय गॉड, पूरे गांव के इतने प्यारे लोग होते हैं ना बिजनौर के, जो लोगों से मैं मिली, वेरी हम्बल, वेरी सिंपल, बट हार्ट्स फुल ऑफ लव एंड केयर एंड कंसर्न। सब लोग आके खड़े हो गए। मुझे तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी बिकॉज सो मेनी कैमराज वर ब्लिंकिंग। जब इतने फ्लैशेस ब्लिंक हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा। प्यार से सबने स्वागत किया, खाना खिलाया। आसपास के गांव से भी कुछ लोग मिलने आए थे। मैंने कहा कि मुझे ज़रा आम के बाग दिखाइए। तुरंत अरेंजमेंट किया गया और हमें बाग लेकर गए और हमने आम देखे। गांव की बहुत सी प्यारी यादें लेकर हम लौटे दिल्ली। इट वाज सच अ डे, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो रेडियो की खास बात यही रही है मेरी ज़िंदगी में कि लोगों के साथ ऐसा रिश्ता जुड़ता है, शायद उनके साथ नहीं जुड़ पाता जो आमने सामने रोज़ मिलते हैं। उनके साथ वो कनेक्ट नहीं फील हो पाता जिन जो इतने दूर दराज 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हैं या फिर आउट ऑफ द कंट्री भी हैं। सो दैट ब्यूटी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म रेडियो। Ma'am, if you also agree, I feel it's so warm in my heart. Like it's so lovely feeling. How like sweet. It's true love you get. Ma'am, also I want to ask you, जैसे आपने बोला कि you are not face to face among your visitors. Yes. Not visitors, your viewers. Listeners. Listeners, yeah. But how did you create that sort of warm feeling among them कि इतना loved हो रहा है and they are so emotionally attached to you as well? How did you manage? आई थिंक देखो आस्था, मुझे लगता है कि ये चीज़ ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, बट आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट को मैं एक्सप्लेन करूँ। कुछ चीज़ें होती हैं, वो हो जाती हैं जब आप दिल से जेन्युइनली, आप सिर्फ रेडियो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको प्रोफेशन मिला है, आपको काम करना है, नहीं। आप काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें आप अपना इमोशन, अपनी जान उसमें डाल रहे हो, तो वो एक कनेक्शन खुद ब खुद बन जाता है। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता होगा, बट आई कैन ओनली टॉक अबाउट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव फेल्ट सो फार। तो वो चीज़ बहुत अमेजिंग होती है। और लिसनर्स, क्योंकि अच्छा मैं समझती हूँ कि रेडियो इसलिए भी ज़्यादा ख़ास है कि वो एक तो बहुत पुराना मीडियम है, और आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो एक तरीके से इट्स लाइक द डैड ऑफ ऑल रेडियो स्टेशन इन द कंट्री। तो वो बहुत पुराना है, तो रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है। और जो चीज़ हम सुनते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती है कंपेयर टू व्हाट वी सी। हमने देखा और हम भूल गए। बट आज भी अगर मैं सुबह जैसे ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ तो मैं अपना रेडियो ऑन कर देती हूँ और उस पर जो गाने, वो बातें वो चलती हैं, तो वो पूरे दिन में न्यूज़, कभी कभी मैं न्यूज़ भी सुनती हूँ बिकॉज न्यूज़ बहुत अमेजिंग होती है सुनने के लिए, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो थ्रू आउट द डे दिमाग में रहती है कि अच्छा आज मैंने ये गाना सुना था, अच्छा ये बात उसमें बताई थी, तो इट हेल्प्स यू। तो वो जो सुनने वाली बात होती है ना, और एक समथिंग विच इज़ अननोन, रेडियो पे इट्स समथिंग अननोन, वी हैवंट सीन द पर्सन। तो वो जो एक सस्पेंस होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि वो दिखते कैसे होंगे, अच्छा इसकी आवाज़ ऐसी है। कई लिसनर्स बोलते हैं नेहा जी आपने ये नहीं बोला कि आवाज़ ही पहचान है तो चेहरा नहीं दिख रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑल द इमोशन, ऑल द फीलिंग्स, जो भी आप समा बांध रहे हैं। द थीम ऑफ द प्रोग्राम वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ से हो रहा है। सो उसमें तो आपके जब तक इमोशन नहीं आएंगे, आपके एहसास नहीं आएंगे, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं होगा। राइट, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो ऑफ द शो आप उन लोग के घर गए, उनसे मिले, वो सच अ स्वीट एक्सपीरियंस। वाइल ऑन एयर कभी शो के टाइम पे कोई इमोशनल मोमेंट आपका रहा? अरे बहुत होते हैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं पर्सनली भी बहुत इमोशनल इंसान हूँ। कोशिश रहती है कि जब भी किसी से बात हो या कोई रिश्ता हो तो उसमें इमोशन हमेशा अच्छा वाला होना चाहिए। तो जब हम शो करते हैं और कई बार ऐसी बात हो जाती है, हुई है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो
कोई दिल से बात मैंने कही, मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, नेचर के बारे में, तो अचानक से वो बात इतनी इमोशनल दिल को छू जाती है कि मेरी आंखें कई बार नम हो जाती हैं। और पता नहीं शायद लिसनर्स भी फील कर पाते हों, लगता तो ऐसा है। जब वो मैसेजेस भेजते थे तो उससे पता चलता तो था कि हाँ लिसनर्स समझ पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़िंदगी की बात हम कर रहे हैं कि मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था, मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया था। आई रियली टॉक अबाउट माई फादर मैनी अ टाइम्स, तो वो बातें फिर इमोशनल कर देती हैं, है ना। या फिर आप किसी ऐसे दिन शो कर रहे हो, मान लीजिए आज डॉटर्स डे है या फादर्स डे है या कोई और फ्रेंडशिप डे है, और उस दिन आपका शो लग गया है, तो आपको इमोशंस तो दिखाने पड़ेंगे until you make that connection with your listener through your words, through your voice। तो फिर मज़ा नहीं आएगा जब तक नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाट वी ट्राई एंड डू। रेडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन एंड entertaining people, it is about building relationships and being that special person in somebody's life जो कहीं किसी दूर किसी सिटी में, किसी शहर में, किसी कमरे में, कोने में बैठ के सुन रहा होगा, उसके साथ हमारा एक रिश्ता सा जुड़ जाता है। That's how I see it। Ma'am, do you also feel that evolving times अब ब्लूटूथ आ गया है तो रेडियो का ट्रेंड बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इस चीज़? बिल्कुल आप सही कह रही हैं आस्था, ऐसा है। थोड़ा इम्पैक्ट कम हो गया है क्योंकि हमारे पास डाइग्रेशन बहुत चीज़ों के आ गए हैं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है। अगेन मैं जो भी बोल रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब हम पहले के समय की बात करते थे हमारे पास समय बहुत था, है ना, लाइफ वॉज नॉट दैट फास्ट पेस्ड। अब हम भाग रहे हैं, तो जब भाग रहे हैं तो हमारे पास रुकने का, सुनने का टाइम नहीं है। दैट्स द ओनली सैड पार्ट अबाउट इट। बट अदरवाइज मैं तो शायद अभी भी उसी ज़माने में हूँ, 80s एंड 90s। आई एम अ 90s पर्सन, सो मैं आज भी वही हूँ एंड आई कैन टॉक एंडलेसली अबाउट दोज टाइम्स। मैं शायद समय के साथ नहीं भाग रही हूँ। दैट्स वेरी नाइस। सो कोई मिसकंसेप्शंस हैं जो आरजेस के बारे में लोगों को होते हैं जो आप क्लैरिफाई करना चाहोगे? मिसकंसेप्शन शायद ये हो सकता है कि इसकी आवाज़ अच्छी है तो शायद देखने में बहुत मधुबाला जैसी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर आवाज़ को पसंद कर रहे हैं तो चेहरा कैसा भी हो, कद काठी कैसी भी हो, आपको उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। आवाज़ से रिश्ता जुड़ा है तो फिर आवाज़ से जोड़िए। Also I feel if you are on the broadcast platform, this year हमारी TED की theme is disenchanting the hustle mirage। तो do you feel in some kind of way how is it related to your life as well? Okay. Like we would want you to connect your experience as RJ and then as an academician, both. कि कैसे उस hustle को break किया जाए to have that peace in your life? I totally agree with you that we are in a hustle these days। हम लोग बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। The times are changing at a very fast pace। ऐसे में थोड़ा सा रुकना, थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। उसके लिए मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं आज भी 90s में हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समय के साथ ही नहीं चल रही हूँ। इसका मतलब ये है मेरे लिए कि अगर मान लीजिए मैं रेडियो पर कोई बात करती थी या मैं टीचिंग में कोई बात अब अपने बच्चों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, तो आई टेक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम दोज टाइम्स जो चले गए हैं 90s के, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें सच में बहुत अच्छी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे अपने बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाना है या मुझे उनको कम्युनिकेशन सिखाना है, कैसे बात करते हैं, तो आई वुड टेक द रेफरेंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, द न्यूज़ दैट इज़ ब्रॉडकास्ट थ्रू द वेरियस चैनल्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो मेरे हिंदी या अंग्रेज़ी में कोई भी न्यूज़ आप ले लीजिए, मेरे लिए दैट विल बी द बेस्ट ऑडियो TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दैट वी कैन से टू टीच अ चाइल्ड के पहले सुनो कैसे न्यूज़ पढ़ी जा रही है। हिंदी में है तो हम उसका एक बच्चे को ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं। अब आप सुनिए और देखिए कि जो शब्द यहाँ बोला जा रहा है वो कैसे उन्होंने बोला जो न्यूज़ रीडर है, बिकॉज द न्यूज़ रीडर्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, दे आर ट्रेन्ड, दे आर पॉलिश्ड, और वो एक बेंचमार्क हमारे लिए रखते हैं कि ऐसे न्यूज़ पढ़ी जाती है या ऐसे उच्चारण किया जाता है शब्दों का, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस दैट वी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ इन। तो मैं ऐसे इस चीज़ को अप्रोच करती हूँ। और लोग और प्लेटफॉर्म्स लेते होंगे, मे बी पॉडकास्ट सुनाते होंगे बच्चों को, बट समवेयर आई फील क्या बाकी जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं
उन पर उस क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है दैट दोज 90s न्यूज़ एंड द न्यूज़ दैट इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स, क्या उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है? शायद नहीं, हो सकता है कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है कि हमें ऐसे बात करनी चाहिए। हम शब्दों को खा जाते हैं, वैसे भी SMS लैंग्वेज का ज़माना है और शब्द हम सिकोड़ते जा रहे हैं, बातें हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, गुड मॉर्निंग को GM कहते हैं, व्हाट्सअप कह देते हैं। सो बहुत सी ऐसी, आई थिंक आस्था वुड बी अ person to talk about it, the SMS lingo and the Gen Z language. Now we don't even write WhatsApp, we just write up question. Oh my goodness, now this is something new for me, this is my takeaway from here. We even say हाँ. 1 second that we don't actually save. Yes, and that's absolutely true. और मुझे recently ये भी पता चला, just to match the pace of the present generation, कुछ ऐसे पुराने क्लासिक टेक्स्ट हैं जो शेक्सपियर ने लिखे थे, प्लेज हैं उनके, जिनको अब SMS लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है या इमोजी लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। दे हैव बीन रिक्रिएटेड सो दैट आज की जो जेनजी है वो इस चीज़ को समझ सके। एक पॉइंट हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों को कंसिडर करके ये चेंजेस लाए जा रहे हैं, बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इट्स लाइक ब्रेकिंग माई हार्ट। द क्लासिक्स शुड बी यू नो लेफ्ट अनटच्ड। बच्चों को ही शायद समझना चाहिए कि शब्दों को अगर ख़त्म कर देंगे तो कल को तो भाषा ही ख़त्म हो जाएगी, हम लोग शायद साउंड्स में बात करना शुरू कर देंगे, मे बी सम ट्राइबल पीपल, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स अगेन अ वेरी पर्सनल ओपिनियन। बाकी ये भी सही बात है कि ट्रेंड के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। राइट। सो आज एक्सपीरियंस की बात हुई, एज अ टीचर, एज अ मॉडर्न टीचर, आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं कि जैसे कि कहा, बच्चे बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, हमारे मूल्य बदल रहे हैं, तो अब जो जनरेशन है उसको कैसे डील करें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन पहले जैसे कि मैं इसको अगेन कनेक्ट करूँगी विद द पास्ट, कि पहले क्या होता था कि पेरेंट्स ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, गुरु शिष्य परंपरा, एंड यू नो टीचर सामने दिख गए तो चरण स्पर्श होंगे, वो सब चीज़ें। आज ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि टोटली ख़त्म हो गई हैं, बट थिंग्स हैव स्टार्टेड टू चेंज। तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा पता भी है, मुझे ऐसा लगता है, देन हमें जितना पता होता था हमारे टीचर से। आज के बच्चे बहुत वेल रेड हैं, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, तो उनको कैसे हम आज की नीड्स के हिसाब से एड्रेस करें, उनकी नीड्स क्या हैं, ये आइडेंटिफाई करना एक टीचर के लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। टीचिंग इज़ एक्चुअली अ जॉब ऑफ अ लॉट ऑफ पेशेंस। You as a teacher would agree with me, I guess, because आपको बहुत कुछ डील करना है। कई बार ऐसा भी एक्सपीरियंस होता होगा, आई एम श्योर आपके साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है, वेर यू फील कि यार आई एम फेलिंग एज अ टीचर, मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, माई बॉक्स इज फिनिश्ड, आई एम आउट ऑफ स्ट्रैटेजीज नाउ। बट दैट्स नॉट वेयर अ टीचर हैज़ टू स्टॉप। यू टेक योर टाइम, stop there, come back again you should be revitalized with the new strategies and things, and then come back. Teachers को learn. There we restart actually. That's how it is. These are the challenges that I believe we as teachers face. बच्चों की जो needs हैं उनके हिसाब से अपने आप को upgrade करना। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 10 साल पहले B.Ed करके टीचर मैं बनी थी तो आज भी मैं वही टीचर रहूँगी। Of course in these 10-12 years I've been teaching for, a lot of transition has come in me. I was not this confident when I became a teacher. No, seriously, this is what has happened with me. When I became a teacher, I started dealing with children, I started going to classes, I had my setbacks, I had my failures, but those failures actually made me what I am today. And I think I'm doing pretty well. God has been very kind, people have been very kind who have given me opportunities to excel in life. I'm very thankful to all those people, whether they have been my recruiters, they have been my friends, they have been my colleagues, teachers, and amazing people out there. Right. So if you go back in past, would you still choose the same path? I think so, because now things have actually fallen in place. पहले तो नहीं पता था ना ये सारी चीज़ें कि ऐसे this is how life is going to unfold. So जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ज़िंदगी को एक मौका देने की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ वर्क नहीं की तो हम बिल्कुल हताश हो जाएंगे। We should always have a second option, third option. नेवर बी आउट ऑफ ऑप्शंस एक्चुअली, बिकॉज अगर हम अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो देखो लाइफ में फेलियर्स तो आते ही रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स को समझने के लिए।
तो आप देखिए व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एंड ये बात कभी मत सोचिएगा कि आपके लिए सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस बने हैं, समथिंग विल वर्क आउट। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपने सोचा, हो सकता है आपने सोचा नहीं, किसी ने सजेस्ट किया, कहीं से कुछ आपको रे ऑफ होप दिखी एंड देन इट क्लिक्ड एंड इट वर्कड फॉर यू एंड यू विल बी लाइक ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने नहीं सोचा था आई विल बी एवर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ रेडियो स्टेशन। मुझे मिली थी अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सो ग्लैड एंड सो हैप्पी, गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड एंड सो हैव द पीपल अराउंड मी। Also, as you were a teacher and you also did RJ side by side, so your students must know about कि आप yes, RJ हो। बिल्कुल। So उसका क्या व्यू था? वो बच्चे, मैंने तो कुछ बच्चों को इवन आई गेव देम दी अपॉर्चुनिटी कि आप आइए रेडियो पर, और बच्चों के लिए क्योंकि प्लेटफॉर्म्स होते हैं वेर यू कैन बिकम एन आरजे। आई थिंक समबडी फ्रॉम दिस कॉलेज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट अ शो ऑन ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो। एक जैसे होता है ना, वो फिल्म आई थी एक दिन का मुख्यमंत्री, तो इट वॉज लाइक 1 घंटे के लिए यू कैन बी एन आरजे एंड you can have your script, you can talk like that, because all India radio is a platform that you know is there, कुछ ना कुछ वहाँ हर किसी के लिए है, whether you are a person in your 40s, whether you are a youngster, especially for the youngsters, कुछ ना कुछ वहाँ पर है, starting from a young child to a person who's an adult, कुछ ना कुछ वहाँ पर है। बस आजकल की जो जनरेशन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, गेट इन टच एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ वंडरफुल टाइम। तो बच्चों ने तो बहुत इस चीज़ को एंजॉय किया है। विच एवर स्कूल आई हैव टॉट इन, दे हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड मी सो मच फॉर व्हाट आई हैव डन एंड आई एम ट्रूली ग्लैड। I'm like listening to all of your things. I genuinely feel that you've been always been supported by your students. Absolutely. And I think one of the biggest thing it contributes is because you generally love your students as well. Yes. And that's why they support you so much. बिल्कुल। But apart from that, I also want to ask you that when you were in RJ and हर फील्ड के अलग स्ट्रगल्स होते हैं, तो while you were in RJ क्या उसके भी कुछ स्ट्रगल्स थे? बिल्कुल। इंडस्ट्री वाइज या कुछ? स्ट्रगल्स नहीं कहेंगे, चैलेंजेस कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू अ हाई प्रोफाइल पर्सन, तो वहाँ पर वो जिटर्स जो होते हैं ना, कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ। सी आई हैड द प्रिविलेज ऑफ इंटरव्यूइंग द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन आर्मी, मिसेज अर्चना पांडे, एंड दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड। अब एक आर्मी वाइफ को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑल्दो आई को होस्टेड विद अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बट स्टिल इतना डर लग रहा था। ऑल्दो द इंटरव्यू वेंट फैंटास्टिकली, इट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ेदार था, लेकिन थ्रू उससे पहले जो डर एक लग रहा था ना, वो डर आई थिंक ज़रूरी भी है, बिकॉज यू कांट, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो इट्स बेटर टू बी अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट देन टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो वो जो अंडर कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको पिंग करता रहता है, हेल्प करता रहता है। सो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज। और होता क्या है रेडियो पर, डर तो लगता है कोई भी प्रोग्राम करने से पहले, लेकिन वंस यू डू इट यू गेट अ हैंग ऑफ इट, तो वो फिर ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, मक्खन की तरह चल रहा है आगे। इट बिकम्स रियली स्मूथ बिकॉज यू नो कि क्या करना है। और इसका एक और ब्यूटी जो रेडियो की रही है मेरी लाइफ में, कि चीज़ें ऑन द स्पॉट होती हैं, तो यू हैव टू एक्ट स्पॉन्टेनियसली, यू कांट प्लान। तो वही तो चैलेंज है। अगर आपको पहले से सब कुछ प्लान करके बता दिया जाएगा, देन आपकी वो स्पॉन्टेनिटी तो आएगी नहीं। इट विल बी लाइक अ पैरट हुज बीन फेड विद थिंग्स एंड द पैरट इज जस्ट रिपीटिंग थिंग्स, वो नहीं होता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ रेडियो, कि आप ऑन द स्पॉट चीज़ें करते हो। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और एकदम से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, अब आप कैसे हैंडल करेंगे, या फिर कुछ आपको बोलना है, आपकी वो पेज की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ पेजेस इधर उधर हो गए, आप कैसे हैंडल करेंगे। गाना बजाना है, गाना नहीं मिल रहा है, कैसे हैंडल करेंगे। या गेस्ट ने या किसी लिसनर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पुट अप कर दिया विद द गेस्ट जो आपको लगता है कि नो दिस क्वेश्चन कैन नॉट गो ऑन एयर, आप कैसे हैंडल करेंगे। सो इट ट्रेन्स यू, माइंड एकदम ऐसे फंक्शन करने लगता है कि मुझे पता है क्या करना है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मैम, अर्चना पांडे के साथ साथ और भी कोई हाई प्रोफाइल्स है जिसके साथ ये वर्क हैं, बट मुझे अभी उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है। समबडी फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, एग्जैक्टली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई वुड लाइक टू मेक अ मेंशन ऑफ इट। अगेन एन आर्मी पर्सन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, उनका इंटरव्यू किया था। दैट वाज अ सोलो इंटरव्यू दैट आई डिड। पिछला वाला तो को होस्ट किया था, ये वाला सोलो था, तो इसमें और ज़्यादा डर लग रहा था। बट एज आई स्टार्टेड डूइंग इट, सवाल जवाब चलते रहे, एंड द एक्सपीरियंस अगेन एज आई सेड बहुत अमेजिंग होता ही है।
So do you have a dream project or something which you feel कि हाँ, this is something I'm aspiring for? आई वॉन्ट टू इंटरव्यू शाहरुख खान. अब मुझे ये लगता है कि मैं इंटरव्यू कर भी पाऊंगी. आई कीप लुकिंग एट हिम. No, that is so relatable. Yes. He is my crush since. नहीं, तुमसे पहले मेरा क्रश है. Really is every Indian, every girl's. That's true. Right. Okay. Apart from that, जितने भी आपके experiences अब तक रहे हैं, कोई एक ऐसी fond memory है जो आपकी रही है? क्या this is something जो मैं till date cherish करती हूँ? रेडियो से रिलेटेड Anything. Either ways. सारी मेमोरीज ही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जो मैंने जो भी काम मैं करती हूँ, चाहे मैं एज अ टीचर कर रही हूँ और एज अ रेडियो पर्सन किया है, वो हर दिन एक मेमोरी है. बिकॉज मैं इसको बहुत आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग. Because there are so many more talented people out there, they may not be getting that opportunity. I have that opportunity. Should I not consider myself as a blessed soul? I do that. So मेरे लिए हर opportunity एक इतना बड़ा blessing है. मैं समझती हूँ कि this is the best day of my life. Because वो moment किसी और को नहीं मिल रहा है जीने के लिए. आई एम द चोजन वन, सो आई एम द ब्लेसड सोल. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मैं हर प्रोग्राम, अभी यहाँ पे बैठ के भी आई एम थिंकिंग दैट देयर आर सो मेनी talented people in the world and I am getting that opportunity to be here and talk about my life experiences. क्या मैं इतनी खास हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करने का? Can I be of any use to anyone? Can I inspire anybody? तो ये जो feeling है ना, I'm truly full of gratitude to all you people, to God, to my destiny, to everything. I think we should move towards a fun segment now. Yes. Oh, lovely. Right? Let's do one rapid fire. So I'll be asking you 5 to 10 questions and you have to just speak जो भी आपका first instinct आता है and you cannot take more than 1 second please. More than 1 second. You're giving me a lot of time. You can take 0.01%. Oh my goodness. So- चलिए, let's shoot it. Yes. Board exams or open book life lessons? Board exams. One subject you like more than English? Hindi. Hindi, okay. Morning staff room tea or late night grading of papers? Morning staff room tea. Favorite line from a book? I don't remember it. It's there in my WhatsApp. It's my status. Live session or live classrooms? Live sessions. If you were a movie, what would be its title? मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है. That is a good one. One student habit that makes you laugh so much. Can you please repeat the question? One student habit that makes you laugh so much. That students talk a lot in the classroom. It makes me laugh actually कि पढ़ा रही हूँ, पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, तो मैं भी हंसती हूँ उनके साथ में. Doesn't it make you angry? Sometimes it did, but then I was used to it. Alright. One actor you'd cast as Miss Benewal in your biopic. I would cast myself. If I would not give you. anybody else an opportunity. That is a good one. Last is, what is the mantra of your life? Live and let live. So ma'am, now tell us one thing that you have done recently and you are really proud of. I'm proud of so many things that I have done in my life, and recently I had the opportunity of playing a mother's role in an NCERT video. Now NCERT prepares video lessons for children to make them interesting for junior classes. So for a class 6 textbook, I think it's a Hindi textbook, I had a very tiny role to play. एंड मैंने एक माँ का रोल किया, मैं गोलू की मम्मी बनी थी और वो वीडियो आउट हो गया एंड अच्छा लगा मुझे देख के, ऑल्दो यू नो प्लेइंग अ मदर तो थोड़ा सा लगता है, बट देन व्हेन यू आर एन एक्टर, यू आर अ परफॉर्मर, यू आर अ क्रिएटर, यू डू नॉट थिंक ए रोल क्या है, इट इज़ द रोल दैट मैटर्स एंड द प्लेटफॉर्म दैट यू आर गेटिंग दैट मैटर्स. तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. सो अब मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्ट. And I'm sure कि ऐसी opportunities in future भी आ जाएंगी. So from RJ to educator to an actor now. And a voice-over artist also, you can call me. Yes. Because I also had the privilege of recording an entire textbook for NCERT, and it's a class 7 textbook. For the blind students, we record the textbook as an audio so that they can also have the privilege to read the textbook by the audio. So I was given the opportunity. I was so fortunate that my voice was selected and I was able to justify. Soon I'm hoping that the book will be out and the audio can be heard by
all the children and everybody. So you can even mimic voices. No, I didn't mimic actually. I narrated the textbook. So that's such a noble cause, Thank you. seriously. Absolutely. Okay, so if I give you a TEDx mic for a minute, what will be your message? All right, so my message would be that life is always amazing. So even if you have any setbacks in life, you should never let them bring your spirits down. ज़िंदगी बहुत सुंदर है, आप जब तक उसको इमेजिन नहीं करेंगे, you have to be very generous, you have to be very full of gratitude towards what you have in life. और ऊपर वाले का शुक्राना कीजिए कि ज़िंदगी मिली है. बहुत से लोगों को ज़िंदगी नहीं मिल पाती है और ज़िंदगी में जो बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं वो नहीं मिल पाती हैं. सो ऑलवेज़ बी अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल. आप कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर ज़रूर है. यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट कि क्या टैलेंट है और उसको नर्चर कीजिए और उसके पीछे मैं कहती हूँ दीवानगी की तरह से लग जाइए. वो दीवानगी, वो पागलपन, वो बहुत ज़रूरी है. एंड सबसे बड़ी बात होती है, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल एंड नोबल सिटीजन ऑफ द कंट्री. Thank you so much, and through your diverse experiences, you have proved that educators are not just who stand by the blackboard and teach. Absolutely. Educators, RJs, each and every person has something to contribute to society. Absolutely. And I think a teacher should always be an all-round person. सिर्फ टीचिंग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता. टीचर्स को कई बार ये हो सकता है कि शायद मौका ना मिले या शायद उनको वो चांस नहीं मिल पाता. But most of the teachers, they always have an all-round personality. They have multifaceted personalities. And whenever they have an opportunity, I know so many of my friends, they are teachers and they are also doing so many things, like they are actors, they are anchors, they are writers, they are poets, so many people I know. And I really feel blessed to be around and surrounded by such talented people. I think as a student, I'd be really blessed to be taught by you. Oh, that's so sweet, this is Astha. not- That's so sweet of you. Yes. I think Thank you so much for coming. Thank you so much for having me here. I'm really, thankful to the platform that I've got here. Thank you to Vips. Thank you to both the anchors. Thank you so much for having me here. Have a wonderful day. All right. So this is Astha, This is Dr. Nikita and this is Rawcast. by TEDx Fips. And we'll see you soon.